પુસ્તકમાં ઘણા બધા વિચાર છે, એટલે આપને આપેલ પુસ્તકનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરીને એમાં જે વિચાર છે એ આપ પણ ગ્રહણ કરશો અને એ વિચારોને આગળ પહોંચાડવા માટે સાહેબજીના વિઝનને આપ એમાં જોડાતા રહેશો. પૂજ્યશ્રી થોડી જ સમયમાં આપણી સાથે રૂબરૂ થશે. અત્રે બીજી એક જાહેરાત છે. ખૂબ સરસ મજાના સેશનમાં આપણે ઉપસ્થિત થયા છે. ગુરુજી અમારો અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારો ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने. ગુરુજી અમારો અંતરના અમને આપો આશીર્વાદ. ગુરુજી અમારો साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने. सबकी ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने. हेलो सामूहिक गुरु साहित्य की इच्छामि बूंदों से खमासमो आया मन को पिरोने. इच्छामि सबकी उलझन सुलझाने. इचकार सूराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वोचोजी स्वामी साता छेजी भात पाણીનો લાભ દેશોજી. हेलो इच्छामि खमासमो वंदी उजामणी जय इच्छामि खमासमणु वंदी उजामणी जय भगवान अभूठमी अभ्यंतर इच्छामि खमासमणु वंदी इच्छाम खामेमी राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विने व्यावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर वासाय उरी वासाय जंकिंची मज्जैन परिणाम सुवम वा वायरम वा तुबे जाण अहम न जाणामि तसम इच्छामि दुक्कडम. इच्छामि खमासमणु वंदी उजामणी जय निश्चय मथेण वंदामि. सुख सातामा साहेब. इच्छामि खमासमणु वंदी उजामणी जय निश्चय मथेण वंदामि. इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा संदेशो. इच्छामि खमासमणु वंदी उजामणी जय निश्चय मथेण वंदामि. इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा लेसु. इच्छामि खमासमणु वंदी उजामणी जय निश्चय मथेण वंदामि. इचकारी भगवान पसाई करी वायणा प्रसाद करावशो जी. नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए संबदावणमे समंजन मुकारो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधुरो जय ओम जगप्रियाणम बिंदु महो भयवम जय स्वाणम भवयोगिना चित्तैराणामदम अपच्छिमो जय जय गुरुराय जय महपा नमः जय धरणीधनमं सिया पौमावैकारं बिंदुसंयुक्तमपाय नित्यं ध्यायन्ति ब्रह्मा योगिनः करे उसिरिपादं जगन्नाथं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणीधनमं सिया पौमावै पमुवनिसेव्यपाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे उसिरिपास जगनाओ अज्ञान. આજનો એક સરસ મજાનો પ્રવચન સેમિનાર અને એમાં પણ આપણને બે સેશન સાંભળવા મળવાના છે. એવા જેમને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મભૂષણ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હિન્દુ સ્ટડીઝ દ્વારા આયોજિત આજનો એક સરસ મજાનો પ્રવચન સેમિનાર અને એમાં પણ આપણને બે સેશન સાંભળવા મળવાના છે. એવા જેમણે ભારત સરકાર દ્વારા ઉપસ્થિત મહેમાનશ્રીઓને વિનંતી છે કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે ઉપસ્થિત થશો. કાર્યક્રમને વિધિવત રૂપે આપણે ઉદ્ઘાટિત કરશું. સંજયભાઈ આપ પણ ઉપસ્થિત રહેશો. સ્નેહલભાઈ આપ પણ, અનુજભાઈ આપ પણ ઉપસ્થિત રહેશો. असत्यो माहेथी प्रभु परम सत्य तू लई जा.
જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ પાછળ ઊભા છે એમને વિનંતી, આગળ આપ જગ્યા છે અથવા તો આ સ્ટેર કેસમાં પણ જગ્યા લઈ લેશો. આપણે દરેક પૂજ્ય મહારાજ સાહેબને સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત થયા છે. આપ સર્વનો ઉત્સાહ ખૂબ આવકારદાયક છે કે આ સંપૂર્ણ હોલ આપણે આગળ પણ જગ્યા છે, આપ સ્થાન લઈ શકશો અને સ્ટેર કેસમાં પણ આપ સ્થાન લઈ શકશો. પાછળ ઊભા દરેકને વિનંતી છે, આપણે સાહેબને નજીકથી અને ઊંડાણથી સાંભળવાના છે, એટલે આપ આગળ પધારશો, દરેકને વિનંતી છે. પ્રથમ મિત્રો, સંત અને વસંત આ બંને વચ્ચે ખૂબ મોટી સમાનતા છે. ફરીથી, સંત અને વસંત આ બંને વચ્ચે ખૂબ મોટી સમાનતા છે. જ્યારે વસંત આવે છે ત્યારે આપણી પ્રકૃતિ સુધરી જાય છે. જ્યારે વસંત આવે ત્યારે પ્રકૃતિ સુધરે છે. અને એવી જ રીતના જ્યારે સંત જ્યારે આપણી નજીક આવે, આપણા કેમ્પસમાં આવે, આપણી ધરતી પર પધારે, ત્યારે સમગ્ર સંસ્કૃતિ સુધરી જાય છે. સાહેબ, યુનિવર્સિટીના કુલગુરુ માનનીય ચાવડા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પૂજ્યશ્રીનું યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી સ્વાગત કરે. આપ સદનમાં ઉપસ્થિત દરેકને પોતાના સ્થાન પર ઉપસ્થિત થવા માટે વિનંતી છે. ઉપસ્થિત દરેકને પોતાના સ્થાન પર ઊભા થવા માટે વિનંતી છે. પૂજ્યશ્રીનું આપણે સન્માન કરી રહ્યા છે, યુનિવર્સિટી વતી આપણે આવકાર આપી રહ્યા છે. અને તાળીઓનો અવાજ બંધ નહીં થવો જોઈએ. સાથે જ યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય શ્રી સંજયભાઈ લાપસીવાલા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ સાહેબજીને આવકાર આપે. આપણે દરેક જણા પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખશું. સન્માનનો દોર 1-2 મિનિટમાં આપણે આદરણીય શ્રી સંજયભાઈ લાપસીવાલા સાહેબને વિનંતી છે. શ્રી બાલાજીભાઈ રાજે સાહેબને વિનંતી છે કે સાહેબનું સ્વાગત કરે. સાથે જોડાવા વિનંતી છે. આદરણીય ધડુક સાહેબ, આપ પણ સાથે જોડાશો. ઉપસ્થિત દરેક સન્માનમાં જોડાશો. મંચ પર ઉપસ્થિત દરેક સન્માનમાં જોડાશો. પ્રણામ, નમસ્કાર. ઉપસ્થિત યુનિવર્સિટીના આદરણીય સિન્ડિકેટ સભ્યશ્રીઓ, આદરણીય સેનેટ સભ્યશ્રીઓ, આદરણીય યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિભાગના વડાશ્રીઓ, સંલગ્ન કોલેજના આદરણીય આચાર્યશ્રીઓ, સદનમાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આમંત્રિત મહેમાનો અને પ્રેસ મીડિયા, આપ સૌનું, આપણા સૌનું એ સદભાગ્ય અને અહોભાગ્ય છે કે જેમને ભારત સરકારે પદ્મભૂષણ એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા છે એવા રાષ્ટ્રીય સંત, મહાન વિચારક, અનેક લોકોના પ્રેરણા સ્ત્રોત, જેમના પર સરસ્વતી માતાના આશીર્વાદ છે એવા પૂજ્ય રત્નસુંદર સૂરીજી મહારાજ સાહેબને આપણે રૂબરૂ થવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આપ સૌ વતી પૂજ્ય રત્નસુંદર સૂરીજી મહારાજ સાહેબ અને પધારેલ તમામ સાધુ સાધ્વીજી મહારાજનું હું વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પૂજ્યશ્રીનું જીવન માનવતા માટે, માનવ જીવનના ઉદ્ધાર માટે, યુવાનોને યોગ્ય દિશા આપવા માટે સમર્પિત રહ્યું છે. તેમના પ્રવચનો દ્વારા તેમને ઘણા વ્યક્તિઓને સદમાર્ગે વાળ્યા છે. પૂજ્યશ્રીને મેળવવામાં ડૉક્ટર સંજયભાઈ શાહ સતત સંપર્કમાં રહ્યા છે, જેમની પણ અત્રે હું નોંધ લઉં છું. પુનઃ પધારેલ તમામ યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય, જય જય ગુજરાત. આ જીમના અંતર્ગત આપણે આ સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ આયોજન કર્યો છે એવું ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હિન્દુ સ્ટડીઝ એમના વિશે 1 થી 1.5 મિનિટમાં વાત મૂકવા માટે એમના કોર્ડિનેટર શ્રી બાલાજીભાઈને વિનંતી કરું છું. સૌપ્રથમ મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં પ્રણામ. આપણે સેન્ટર ફોર હિન્દુ સ્ટડીઝ વિશે મારે 1 મિનિટ વાત કરવી છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અંતર્ગત જે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા શિક્ષણમાં આવે, શિક્ષણની મુખ્ય ધારામાં આવે, તે હેતુસર રાષ્ટ્રીય સ્તરે જે પ્રયત્ન થયા તેને અનુલક્ષીને આપણા વિશ્વવિદ્યાલયમાં સેન્ટર ફોર હિન્દુ સ્ટડીઝ, હિન્દુ અધ્યયન પ્રતિષ્ઠાન નામે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા કેન્દ્રની સ્થાપના થઈ છે. તે અંતર્ગત મહારાજ સાહેબ અમે
માસ્ટર્સ ઇન હિન્દુ સ્ટડીઝ એવો પીજી પ્રોગ્રામ ચલાવીએ છીએ. આવતા વર્ષથી સ્નાતક સ્તરે પણ અમે હિન્દુ અધ્યયનને લાવવાના છીએ. અને વિશ્વમાં જે જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સાહિત્ય, કલા, વિદ્યાની જેટલી શાખાઓ છે એટલી શાખાઓમાં ભારત દેશમાં જે કાર્ય થયું, જે શાશ્વત છે, સમયના ઓઘમાં એ ખતમ નથી થતું, કાલજયી છે, એવું સનાતન ચિંતન, સનાતન સંસ્કૃતિમાં રહેલ વિજ્ઞાન, ન્યાયશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર એવા અનન્ય વિષયો અમે હિન્દુ અધ્યયન એટલે 2 વર્ષના પીજી પ્રોગ્રામમાં ચલાવીએ છીએ. આપમાંથી જેમને રસ હશે, રુચિ હશે તો આપ પણ તેમાં જોડાઈ શકો. કોઈ પણ સ્નાતક થયેલ વ્યક્તિ તેમાં પ્રવેશ મેળવવા પાત્ર છે. ધન્યવાદ. જે પાછળ ઊભા છે મિત્રો, એમને ખાસ વિનંતી, આપ ઝડપથી દાદર પર પણ બેસી શકશો. આપણે આરામથી મહારાજ સાહેબને સાંભળવાના છે નજીકથી, એટલે પાછળથી જેટલા પણ ઊભા છે એમને આગળ પધારવા માટે વિનંતી. જેમને પુસ્તક મળ્યા ન હોય એ મેળવી શકશો. મિત્રો, આપણી પાસે શ્રી પૂજ્ય રત્નસુંદર મહારાજ સાહેબ ઉપસ્થિત થયા છે. આ દરેક સાધુ જીવન વિશે ખાલી 1 જ મિનિટમાં વાત કરીશ. કોઈ પણ ભવ્યતા વગરનું જીવન, સાહેબજી જ્યાં એમની સ્થિરતા હતી ત્યાંથી આપણી જગ્યા પર સંપૂર્ણપણે વિહાર કરીને પગપાળા લોકો વિહાર કરતા હોય છે. આપણે જેવી રીતના અહીંયાથી દિલ્હી જવું હોય, અમદાવાદ જવું હોય તો આપણે કોઈ વાહન સુવિધાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. દરેક સાધુ સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબ પોતે પગપાળા વિહાર કરતા હોય છે. ગરમી હોય છે, અનેક બીજી તકલીફો હોય છે, કેટલીક વાર ગોચરી એટલે કે ભોજન મળે ન મળે, જ્યાં એમની સ્થિરતા હોય ત્યાં લાઇટ, પંખા, કોઈ ભૌતિક સુવિધા કોઈ નહીં. આટલી બધી બાબતો ન હોવા છતાં આજે આપણા જે પ્રથમ સેશનનો ટોપિક છે એનો બીજો શબ્દ, ટોપિક છે આપણું રિચનેસ વર્સેસ હેપીનેસ. આ પ્રથમ સેશનના ટોપિકનો બીજો શબ્દ એ અદ્ભુત આ તમામ સાધુ સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબ પાસે જોવા મળે છે. એટલે સૌ પ્રથમ ઉપસ્થિત દરેક સાધુ સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબ આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. પૂજ્યશ્રી આપશ્રીને વિનંતી છે કે આ વિદ્યાર્થીઓ ને આપણે આશીર્વચન આપશો. જી, થેન્ક યુ. हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया और 10 मिनट के बाद पायलट की आवाज आई. मेरे पास 2 समाचार है, एक शुभ समाचार और नंबर 2 अशुभ समाचार. दोनों समाचार आपको देना कंपलसरी है. आप ही बताओ, आप पहले कौन से समाचार सुनना चाहेंगे? तुम नहीं, तुम तो यहाँ बैठे हो, हवाई जहाज में कहाँ हो? और वो सबने बोल दिया सर अच्छे समाचार पहले सुना दो. भाई लड़के लोग बैठ जाओ. और पायलट ने समाचार सुना दिया. प्रति घंटे इस हवाई जहाज 10,000 किलोमीटर की गति से भाग रहा है. ताली बजी. और अभी गलत अशुभ समाचार सुना हो और पायलट ने सुना दिया कि किस गति पे किस दिशा में जा रहा है मुझे पता नहीं है. 10,000 किलोमीटर की गति से हवाई जहाज जा रहा है, मगर वो कहाँ लैंडिंग करेगा कोई पता नहीं है. आई वुड लाइक टू आस्क यू, बड़ी गंभीरता से एक संत को सुनने के लिए कॉलेजियन लड़के लड़की आ जाए, वो भी आज का चमत्कार है. हाँ, और तुम ताली भी बजाओ तो मैं समझ पाऊंगा 1 नंबर की है कि 2 नंबर की है. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी 3 मानसिकता हो सकती है आपके जीवन का गोल. आई वुड लाइक टू बी रिच, सेकंड नंबर आई वुड लाइक टू बी सक्सेस, एंड थर्ड नंबर आई वुड लाइक टू बी हैप्पी. जल्दबाजी मत करना, कमेंट से मुझे जवाब भी मत देना. ये एमकॉम पढ़ो, एलएलबी पढ़ो, पीएचडी हो जाओ, अलग अलग फैकल्टी में से तुम आगे निकल जाओ. आपका अल्टीमेट गोल क्या, पढ़ने के विधि आप क्या चाहते हो? आई वुड लाइक टू बी रिच, आई वुड लाइक टू बी सक्सेस, एंड आई वुड लाइक टू बी हैप्पी. आपके सामने 3 गोल, और मेरे सामने, मैं तो मुनि हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ ज्ञान के क्षेत्र में मैं रिच बन जाऊँ,
जहां भी मैं प्रवचन करूं वहां सक्सेस बन जाऊं और मैं भी पॉसिबल में हैप्पीनेस महसूस करते चलूं। इस विषय में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या? जहां भी तुम हाथ डालो, आप जो चाहे वो सब कुछ हो जाए, तो आप क्या चाहते हो? इस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, रिच बनने के लिए आने वाले दिनों में, सक्सेस बनने के लिए, या हैप्पी बनने के लिए? आपसे कोई भी जवाब दे सकता है, मगर कमेंट के मूड में जवाब मत देना। आप लिटरली जो चाहते हो वो ही बता देना कि गुरुदेव हम इतने पास हो जाए, बोर्ड में हमारा नंबर आ जाए, और हम ये चाहते हैं, अल्टीमेट हम चाहते हैं हम रिच बन जाए या तो हम सक्सेस बन जाए। एक तीसरे नंबर का गोल भी हो सकता है, यू कैन बी साइंटिस्ट। इफ यू लाइक टू बी रिच, इफ यू लाइक टू बी सक्सेस, इफ यू लाइक टू बी साइंटिस्ट, एंड इफ यू लाइक टू बी हैप्पी, आप क्या चाहते हो? एनी आंसर फ्रॉम स्टूडेंट? बैठे बैठे भी बोल सकते हो। हाँ बोलो। मैं बोलना चाह रहा हूं होनी चाहिए वो मत बोलो। व्हाट यू वुड लाइक टू बी हैव, आप क्या चाहते हो? अल्टीमेट लास्ट में तुम क्या चाहते हो? एक बात, आप मरीज हो एक्स फॉर एग्जाम्पल, और आप कहीं हॉस्पिटल में गए, टॉप डॉक्टर मिला, दवाई टॉप मिली, मगर अल्टीमेट आप क्या चाहते हो? हेल्थ, बराबर है? चाहे डॉक्टर अच्छे मिले, हॉस्पिटल अच्छी मिली, दवाई अच्छी मिली, मैं गुरुदेव में चाहता हूं ये सब होने के बाद मैं हेल्थी होकर निकल जाऊं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एमकॉम एलएलबी बनो, पीएचडी बनो, जो कुछ भी बनना बनो, अल्टीमेट व्हाट यू वुड लाइक टू बी हैव। ओके, आनंद आ गया। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? ये बात ये बोलने में सरल काम है, मगर आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। रिचनेस की डेफिनेशन आपको पता है, सक्सेस की डेफिनेशन आपको पता है, साइंटिस्ट की डेफिनेशन आपको पता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? माने क्या? नहीं, वो भी समझ गया। सेटिस्फैक्शन तुमने बोल दिया, शब्द तुमने कहीं से उठा लिया है। हाँ बराबर है, सच बोलो। कॉपी करने में तुम सफल हो गए, सेटिस्फैक्शन हो गया। एग्जाम में तुम कॉपी करने में सफल हो गए और किसी ने आपकी कॉपी को पकड़ा नहीं, और आप बोले कि मुझे सेटिस्फैक्शन है, गुरुदेव मजे में हूँ। मैं बोला हूँ हैप्पीनेस के एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। मैं भावनगर में वर्षों पहले था, और ये लड़का मुझे मिलने के लिए शाम को, रोज प्रवचन में आने वाला लड़का शाम को आया। तब मैंने उसको पूछा, यार आज प्रवचन में नहीं था, गुरुदेव बोर्ड की एग्जाम का रिजल्ट था, और चेहरे पे मुस्कान। और तब मैंने पूछा, तो चेहरे पे मुस्कान है? गुरुदेव सुबह है ना, प्रवचन का टाइम था, मगर सुबह मैं पार्टी दे के आया। अभी बोर्ड की एग्जाम पार्टी माने अनुमान तो हो सकता है कि परसेंटेज, समझ गए ना? आज इस सभा में बैठने वाले हर लड़के और लड़की अपने आप को ऑब्जर्वेशन कर देना कि इसमें हम तो नहीं है ना। नंबर 1, आई वुड लाइक टू हैव मोर मनी। आप अपने आप के अंदर झांकना, मुझे मत देखना, या आप अपने आप से बात करना कि गुरुदेव जो बोलते वही तो मेरा गोल नहीं ना। आप यही लेकर के बैठे, नंबर 1 मोर मनी। आगे चलना चाहता हूं, चलो मोर मनी का मैं विरोध में नहीं हूं, ओके, आपके पास अब जो रुपया हो तो मुझे कहां दिक्कत है, मगर सेकंड नंबर की कमजोरी इंस्टेंट मोर मनी। सच बोलो, आप करीबन इसमें साथ में मोर मनी और इंस्टेंट मोर मनी बराबर है? हाँ बोलो ना बोलो? ओके, मोर मनी का भी विरोध नहीं, इंस्टेंट मोर मनी का भी विरोध नहीं, मगर थर्ड नंबर का स्टेप एनी हाउ मोर मनी। सच बोलो, आप मुझे बताओ, इसमें तुम समझ, एनी हाउ मोर मनी का विरोध नहीं, एनी हाउ मोर मनी का विरोध नहीं, एनी हाउ। गाली देकर के, मर्डर करके, जो कुछ भी करना पड़े करो, मगर मोर मनी, इंस्टेंट मोर मनी, मनी का विरोध नहीं है। व्हाट अबाउट मॉरल? आपके मन में मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, 1 घंटे में आपके सामने मैं कितनी बात करूंगा मुझे मालूम नहीं। लाखों लड़कों मैंने नजदीक से देखे,
अबदपति तो दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है। वो कोई मजे की बात नहीं। वो चाहे कितने भी गंदी रमत में तो अब्जोपति अब्जो रुपये का मालिक बन सकता है और इनके बाद ब्रांडेड आइटम हो सकती है सब कुछ। मगर व्हाट अबाउट यू गुरुदेव? मनी का विरोध नहीं है, मगर मॉरल को ओवरटेक करके मनी 100% नहीं चाहिए। ये तुम्हारी मानसिकता है क्या? चाहे कितना भी रुपया मिले, मगर एक बात पता चलेगा पक्का कि मॉरल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। गुरुदेव उसी टाइम मैं ना बोल दूंगा। ऊपर जो भी लड़के बैठे, आपकी मानसिकता में पूछना चाहता हूं, मनी का विरोध नहीं है, चाहे कितना भी आपको रुपये मिले, मगर विदाउट मॉरल वी डोंट विश रिचनेस। एक और रिचनेस और दूसरी और हैप्पीनेस, दो आपके सामने है। मॉरल इज द हैप्पीनेस और मनी इज द रिचनेस। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। आपका कोई ऐसा ऐसा कोई मित्र है जो मोरल की बात करे, उनके साथ ही आपकी मैत्री? हु इज योर फ्रेंड? आपको कौन सा मित्र पसंद, मनी की बात करे वो कि मोरल की बात करे वो? प्लीज नो कमेंट। आपका ऐसा फास्ट फ्रेंड कौन बता जाएगा कि जो मोरल की बात करे वो या ज्यादातर मनी की बात करे वो? ओके, अब मौन हो इसलिए मैं समझता हूं आपके पास ठोस इनका जवाब नहीं है। आपके अभी भी जो मित्र है वो मोरल की बात करने वाले हैं कि मनी की बात करने वाले? मनी के क्षेत्र में आगे जाने की बात करते हो कि मोरल के क्षेत्र में आगे जाने की बात? बड़ी मुश्किल है। चाहे माहौल मेरे जैसे संत कभी आ जाते हैं। एक प्रश्न मुझे फिर आगे चलूं, ये प्रवचन सुनना आपके लिए कंपलसरी था कि वॉलंटरी था? हाँ पक्का? हाँ तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी होता है कि कंपलसरी है, गुरुदेव आना पड़ा तो क्या करें। हाँ तो अभी मैं आगे चलना चाहूंगा। मैं मेरी बात भी साधु जीवन में करूंगा। मैं मैट्रिक पास हूं, कभी कॉलेज नहीं गया। आई वॉज ए वेरी पुअर इन एजुकेशन, मगर एक श्रद्धा को लेकर के जब तक मैं साधु नहीं बना तब से घर से भी ये मॉरल की बात पर इतना वजन था, और उसको लेकर के आज इसी जीवन में यहाँ एक मर्दान किस्से में आकर के बैठ गया हूं। और आज भी इसके प्रति इतना प्यार है, मॉरल के प्रति, कि मैं सब कुछ अवॉइड कर सकता हूं। मगर फिर से वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। We can change policy matter but not principle matter, and moral is the principal matter. आप चाहे कैसे भी समाधान करो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, इन सभी एक बात, ग्रेट और गुड मैन चाहे कोई भी हो, आपने एक कॉमन फैक्टर उसमें देखा होगा, सब मॉरल के क्षेत्र में नंबर टॉप पे थे। यदि गुड बनना है या तो ग्रेट बनना है, मॉरल इज द 100% कंपल्सरी। बराबर है। आगे चलना चाहता हूं। एक IAS ऑफिसर के लड़के की एग्जाम थी, शायद आप इसमें हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं। वह एग्जाम में टीचर ने एक ऐसी बात रखी, A ग्रेड, B ग्रेड एंड C ग्रेड, 3 ग्रेड थे, और टीचर ने इतनी बात बताई कि विदाउट एग्जाम यदि तुम खड़े हो जाते हो मैं सभी को B ग्रेड दे सकता हूं। इफ एंड बट हुआ नहीं ऐसा, मगर एक टीचर ने ऑफर रखी कि विदाउट एग्जाम यदि तुम चले जाते हो मैं आप सबको B ग्रेड में पास कर देता हूं, जो चाहे वो खड़े हो जाओ। 70 स्टूडेंट में से 66 स्टूडेंट खड़े हो गए, विदाउट एग्जाम B ग्रेड। 4 लड़के ऐसे ही बैठे रहे, और वो टीचर ने मुझे समझ में आया कि नहीं, सुनने में आया, एग्जाम की झंझट छोड़ दो, सभी को B ग्रेड दे देता हूं। लड़के ने बोला, सर A ग्रेड पाने के लिए तो इतने साल से मेहनत की है,
we can be fail, but without exam we would not like to have B grade. हम फेल हो सकते हैं मगर एग्जाम के बिना बी ग्रेड मिले नो कॉम्प्रोमाइज। आपके जीवन का पहले नंबर का राज। मैं किसी को गाली देने के लिए नहीं आया हूं मगर एक बात बताऊं, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिले और आप पैकेज को लेकर के यदि पागल बन जाते हो तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं। गाली किसके प्रति नहीं है मगर मल्टीनेशनल कंपनी का 1, 2, 3 का प्रोग्राम है। एक आदमी को नौकरी दो, दो आदमी की सैलरी उनको दो और इनके पास 3 आदमी का काम कराओ। 1, 2, 3 का प्रोग्राम, एक आदमी को नौकरी, 2 की सैलरी और 3 का काम। आप परिवार से खत्म, आप भगवान से दूर, आप गुरु भगवंत से दूर, हर एक से दूर। ओनली टारगेट आपका पैकेज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, सब कुछ छोड़ दो। ये पहले नंबर की बात। मनी मिल जाएगा मगर मॉरल खत्म, रिचनेस मिल जाएगी, हैप्पीनेस खत्म आपकी। नंबर 2, विक्ट्री इज द रिचनेस एंड वैल्यू इज द हैप्पीनेस। आप ये बोलो कि गुरुदेव वैल्यू नॉट प्राइस बट वैल्यू, नॉट प्राइस बट वैल्यू। एक चाबी की प्राइस 10 रुपया होती है मगर वैल्यू वो होती है करोड़ों का भंडार खोल सकती है वो। एक मंदिर में रही परमात्मा की प्रतिमा की वैल्यू सिर्फ 1000 रुपया हो सकती है मगर वैल्यू इतनी कितनी होती थी, वी कांट बिलीव इट। इतनी आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप बोलो कि गुरुदेव विक्ट्री नॉट विदाउट वैल्यू। गलत। डॉन ब्रैडमैन को वो जमाने के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और पूरी दुनिया के खिलाड़ी ने डॉन ब्रैडमैन के पास एक टिप्स मांगी थी। हम आने वाले दिनों में क्रिकेटर बनना चाहते, आपके हिसाब से कोई टिप है तो दे दो। और ब्रैडमैन ने बता दिया कि जिंदगी में कैसा भी बॉल आ जाए उनको टैकल कर लेना मगर वाइड बॉल को टच करने की गलती कभी मत करना। वाइड बॉल, ललचामणो बॉल, તમને એમ લાગે કે આમાં 6 મારી દઈશ અને એમાં તમે આઉટ થઈ જાઓ। આ વેલ્યુ સાથેનું ખોટું સમાધાન आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे मालूम नहीं है, जहां जहां भी कॉलेज में जाता हूं, स्कूलों में प्रवचन करने के लिए जाता हूं, वहां पूछ भी लेता हूं। यहां भी सब बैठे, इनको मैं पूछना चाहता हूं, वैल्यू का सब्जेक्ट कितना? मुझे मालूम नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। वैल्यू की प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट कॉलेज में, स्कूल में जो भी तुम पढ़ते हो उसमें कौन सा? શું કહો? वाई नॉट? नहीं, रीजन में जानना चाहता हूं। मिठाई चाय कोई भी हो, शक्कर तो चाहिए। चाहे विक्ट्री कोई भी वैल्यू तो चाहिए, विदाउट वैल्यू तो विक्ट्री को करना भी क्या है। मैं एक बताना चाहूंगा, विक्ट्री नहीं वैल्यू। एक राज कपूर आपने नाम सुना होगा, और उनको वाइन पीने का बहुत शौक। आपके पिताजी पृथ्वीराज कपूर कहते थक गए, राज ये छोड़ दे, ठीक नहीं है। मगर राज कपूर के मन में अपने पिताजी की बात बैठी नहीं, जैसे तुम्हें भी नहीं बैठती है। हाँ बताओ। और राज कपूर ने बस ठंडेपन से पिताजी की बात सुन ली, और पिताजी दुखी थे। ये आने वाले दिनों में इनका क्या होगा वो समझ नहीं पाते, और एक दिन राज को बिठा दिया उसने। राज, एक बात मैं तुझे कहना चाहता हूं। बोलो। राज, वो पिताजी नसीबदार होते हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, यहां बैठने वाले सब लड़के को, आपको कौन बचाएगा मुझे मालूम नहीं। आप खुद मांगते हो कि बच्चे हुए, तो ये गलत फहमी मैं नहीं करता हूं। ये ड्रग्स, ये सिगरेट, ये वाइन, ये सब वाइट बॉल के पीछे तुम जिस ढंग से भागे हो,
हैरान हो जाएंगे आने वाले दिनों में, जो दिन आएंगे वो। और वो राज कपूर को, पृथ्वीराज कपूर, राज एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूं, वो बाप नसीबदार होता है जिनकी अर्थी बेटे के कंधे पे जाती है। राज स्तब्ध है। बाबा क्या बोल रहे हो? अभी मौत की बात मैं बैठा हूं, आप ही बताओ, मस्त तबियत है आपकी। राज कमेंट नहीं, मैं एक बात करना चाहता हूं, वो सुन ले पहले। वो बाप नसीबदार होता है जिसकी अर्थी बेटे के कंधे पे जाती है, और बाप सबसे बदनसीब है जिनके कंधे पे बेटे की अर्थी जाती है। क्या कहना चाहते हो? वही इतने साल से मैं तुझे बोल रहा हूं बेटा, वाइन छोड़ दे, बस इतना ही कहना चाहता हूं। अब तेरी मर्जी, तेरी अर्थी मेरे कंधे पे जानी चाहिए। ये चाहता है तो मजे से पीते चल। और तुम्हें मालूम नहीं है, राजे ने पिताजी को गले लगा के रोते रोते कहा, पिताजी आज से जिंदगी भर वाइन बंद। व्हाट अबाउट यू? आपके माता पिता ने विश्वास देकर के, विश्वास लेकर के तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो। आप ये बोलेंगे गुरुदेव वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज गलत हम कभी नहीं करते। ये वाइन, ये सिगरेट, ये ड्रग्स, हर चीज की गंदी चीज जो मेरे जीवन को तबाह कर देती है, नॉट। अभी मैं संडे के दिन, गत संडे मैं जहां चातुर्मास हूं वहां 3000 लड़के के बीच में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो प्रवचन चला। आज आपके सामने वो एग्जाम्पल रिपीट करना चाहता हूं। वो लड़का हवाई जहाज में मुसाफरी करता था, एयर होस्टेस ने आकर के एक वाइन की ऑफर कर दी उसने। बैठ जाओ, आवाज नहीं, और वाइन की ऑफर कर दी। लड़का, ही वाज हैंडसम, और लड़के ने बोला नहीं मैं वाइन नहीं पीता हूं, मगर नशा नहीं होगा, मैं नहीं पीता हूं। एयर होस्टेस रूपवती थी, और उसके लगे ये चैलेंज मेरे सामने, ये चैलेंज करता है, मेरे रूप को नहीं देता है, मेरी ऑफर को नहीं देता है। और उन्हें ठान ली कि किसी भी हिसाब से उनको मैं वाइन पिला, अलग 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 कंपनी की, ब्रांड की वाइन लेके आई। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 5वीं बार आई तब उसने शराब, ना बोले की ताकत क्या, मैं नहीं पीता हूं। मैं पिलाना चाहती हूं तुझे, एक काम कर, पिलाना चाहती हूं, एक काम कर, पायलट को पिला दे, फिर पीता हूं। एयर होस्टेस तब नहीं, मैं पायलट को ऑफर नहीं कर सकती हूं। क्यों? ये पूरा हवाई जहाज की मुसाफरी है, इनके कंधे पे, जिम्मेदार वो है। बस लड़के ने बोल दिया, बहन इस पायलट को तू यदि वाइन नहीं ऑफर कर सकती है, मैं मेरे परिवार का पायलट हूं, मैं कभी वाइन नहीं पी सकता। मेरी मां, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी भाभी, सब इनकी जिम्मेदारी मैं लेकर के बैठा हूं। यदि हवाई जहाज का पायलट वाइन नहीं पी सकता तो मैं भी तो नहीं पी सकता हूं। आप ताकत लेकर के बैठे हो। अपने आप को चेक करके बोलना, गुरुदेव वैल्यू यदि आपके जीवन में नहीं बची, मैं निश्चित तो सिखाऊं सब खत्म हो जाएगा। सारी दुनिया को यदि पता नहीं होगा, आपका कॉन्शियस आपको शांति से बैठने नहीं देगा। दुनिया ताली बजाएगी, तुम अंदर से खोखले हो जाएगी, यार एक गलत कॉम्प्रोमाइज कर दिया, गलत समाधान मैंने कर दिया। हम इन लोगों का नाम प्यार से लेते जिसने वैल्यू की प्रतिष्ठा रखी। जलियांवाला बाग में जिस डायर ने हत्या कर दी, उनकी हत्या करने के लिए निकला हुकम सिंह, वो जर्मनी में गया और वो पकड़ा गया। मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं, पकड़ा गया शॉर्ट में, भागा, एक लड़की ने उसको पकड़ लिया, लड़की ने पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, फायरिंग तो कर दिया, मगर जब लड़की ने पकड़ लिया तब वो रुक गया। और कोर्ट में मुकदमा चला तो जज ने उनको पूछा, जब तू पकड़ा गया तब? मैं भी पॉसिबल, तू मेरी बात को मजाक मानो और आप बोल सकते हो गुरुदेव ये पुराने जमाने की बात मत करो, मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं आपके सामने। और जब जज ने पूछा कि एक बात का समाधान मुझे चाहिए, जब तू किसी लड़की के साथ पकड़ा गया, तू भागता था, लड़की ने पकड़ लिया, और तब तेरे हाथ में जो रिवॉल्वर थी उसमें एक बुलेट तो थी,
एक बुलेट तूने दाग दी होती तो लड़की खत्म हो जाती और तू बच जाता। यह प्रयोग तूने नहीं किया, लड़की के हाथ से तो पकड़ा गया, इनका कारण क्या है? तब इसने ये जवाब दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, આ દેશના બાળક અને બાળિકાઓ છો તમે, આ તમારી આગળ ઇતિહાસ કોઈ મૂક્યો જ નથી। રામખોરીના ઇતિહાસ તમારી આગળ મૂકેલા, ઇતિહાસ તમને કદાચ ખબર નથી। અને એ વખતે એને જવાબ આપી દીધો, સર તમારી વાત સાચી છે, મારા હાથમાં રહેલી બુલેટથી એ છોકરીને મારી શકતો હતો। અમારા હિન્દુસ્તાનના સંસ્કાર છે, અમે છોકરી સામે જોતા નથી, મારવાની વાત ક્યાં કરો। यदि आपके पास ये इतिहास है, मैं जानना दे वैल्यू का इतिहास है तो मेरे पास। भगत सिंह को फांसी मिलने के पहले अगले दिन शाम को उसने जेलर ने बोला, बोल आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तुम्हारे पास ये इतिहास पढ़ाया तुमने, किसी को याद है तुम्हारे कानों के? तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाया तुमने कभी? और भगत सिंह ने कहा कि एक इच्छा है, मेरी मां के हाथ से मुझे रोटी चाहिए, अंतिम इच्छा मेरी मां के हाथ से रोटी मुझे खाना है। जेलर नतमस्तक हो गया, आपकी मां बहुत दूर है, अंतिम इच्छा और फांसी की सजा कल डिक्लेयर है, हम आपकी मां को नहीं बुला सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं मजे से चढ़ जाऊंगा, मगर आपकी इच्छा, कोई इच्छा अधूरी नहीं। मैं मानता था मां के हाथ से मुझे रोटी मिले तो अच्छी, एक काम कर सकते हो तो कि क्या અમારી ઝૂંપડી જે સાફ કરે છે ને બેન, એને હું મારી માં માની લઈશ, એના હાથે મને રોટી ખવડાવી દો। આ ઇતિહાસ છે તમારી આગળ। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो आते आते अंदर आते थक गया। मैं विनती करना चाहूंगा, किसी भी हालत से एक वैल्यू का सब्जेक्ट की पॉसिबल ऐड कर लो। आदमी को शैतान बना देगी। विदाउट वैल्यू एजुकेशन क्या करेगी, क्या करेगी? आपको दुख लगेगा तो मुझे माफ करना। नागपुर में श्री श्री रविशंकर के साथ मेरा प्रवचन था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवचन करने के लिए जाने वाला था। श्री ने मुझे ना बोला, माना साहब जाने की जरूर नहीं है। मैं बोला क्या काम क्या है? माना साहब 1000 लड़के और लड़के के बीच में मैंने एक प्रश्न पूछा कि सबसे ज्यादा तिरस्कार, आप सबसे ज्यादा तिरस्कार यदि करते हो तो किस पर करते हो? 1000 लड़के के बीच में मेरा यह प्रश्न था, सबसे ज्यादा तिरस्कार किस पर? और तब माना साहब 1000 लड़के में से 700 लड़के और लड़की ने बता दिया, हमारे पेरेंट्स पर हम सबसे ज्यादा तिरस्कार करते हैं। यह है एजुकेशन। जिस माँ बाप की कृपा से पढ़ा लिखा कॉलेज की फी आई और ये बोलते हैं सबसे ज्यादा तिरस्कार। एक बात તમને પણ કહી દઉં, તમે કયા સ્ટેટમેન્ટ ઉપર હસો છો ને એ તમારી ક્વોલિટી નક્કી કરે છે। एक 1000 છોકરામાંથી 700 છોકરા એમ કે અમે એના મા બાપ ઉપર તિરસ્કાર કરીએ, તમારી આંખ શરમથી ઝૂકી ન જવી જોઈએ। विक्टरी वर्सेस वैल्यू। थर्ड नंबर अचीवमेंट वर्सेस एडजस्टमेंट। अचीवमेंट्स आपने जो चाहता वो आपको शायद मिल गया। व्हाट अबाउट एडजस्टमेंट? समाधान करने की मानसिकता। आपके पिताजी की, आपकी माताजी की, आपके घर की जो भी आर्थिक व्यवस्था है वही व्यवस्था में सम्मत हो जाने की, आपकी एडजस्ट होने की मानसिकता। आप चाहते हो वो नहीं मिलता आपको। फिर से एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, पूरा प्रवचन खत्म हो जाए इनके भी पूछना चाहता हूं, आप बता पाएंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? हाँ बोलो बोलो। आपको लगता है कि ऐसा सुख है कहीं? मैं बोलता हूं एक ऐसी डेफिनेशन बताओ जिसमें मैं भी आ जाता हूं, आप भी आ जाते हो और दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है।
हाँ, कभी कभी आपको लगेगा ना, एक माली था ना, माली, और उनको लगा कि सुबह सुबह खुश था, उनको लगा कि राजा को मैं गुलाब जामुन दे दूं, जामुन जामुन जाम्बू आप पा गए हो माली। और राजा सर्दी के दिन में बाहर बैठा था प्रीमाइसिस में, सर्दी का दिन था और धूप ले रहा था, और माली गया और माली ने जामुन दे दिया। હવે ખબર નહીં, જાંબુની ટોપલી માળીએ રાજાની આગળ મૂકણી, રાજા ગરમ થઈ ગયો, जोर से जामुन उठा करके माली पे मारा। जैसे माली के सर पे जामुन मार दिया, माली तो देखते रहा, और 2 ही मिनट के बाद माली मुस्कुरा रहा। अभी राजा हैरान था, राजा को लगा मैंने उसको मारा है, जामुन, वो जामुन मुझे पेट दे रहा है, मैंने उसको मारा, मारने के बाद वो हंस रहा है, क्या बात है। अभी राजा को दिक्कत नहीं, राजाए पूछ्યું माळीने, તે મને જાંબુ ભેટ આપ્યા, મેં તને માર્યા, હસે છે કેમ? તો એ રાજાને એક વિચાર આવી ગયો, આજ હું બહુ નસીબદાર હતો, શેનો નસીબદાર, સવારના પરમાં ઉઠ્યો ત્યારે તમને નાળિયેર ભેટ આપવાનું વિચારતો હતો, સારું થયું જાંબુ આપ્યા, નહીં તો પતી જાતું પોતે। आपको लिखना तो लिख लेना। आज इतनी बड़ी संख्या में बैठने वाले छात्रों और छात्रों को कहना चाहता हूं, जन्म से लेकर मौत तक, चाहे आप डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, राजनेता बनेंगे, चाहे संत बनेंगे, आपके जीवन को एक जिंदगी भर तक काम लगेगा हैप्पी रहने का राज। व्हेन वी हैव नॉट व्हाट वी लाइक, देन वी मस्ट लाइक व्हाट वी हैव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, When we have not what we like, then we must like what we have. जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता है, तब जो मुझे जो मिला उसके प्रति मैं सेटिस्फेक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। साचું બોલો, આવું તમારી આગળ છે? આવી હેપીનેસ તમારી આગળ છે? हम ये मुनि जीवन लेकर के बेटे, वी आर हैप्पी, नॉट रिच, we are not success, but we are happy. in any कोर्ट तुम कहीं भी चले जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते कैसे भी। अचीवमेंट वर्सेस एडजस्टमेंट। कोई चीज की कमी यदि आपके पास है, शिकायत का भाव कम, थैंक्स गिविंग का भाव ज्यादा, एनर्जी है आपके पास। मैं एक बात बता रहा हूं, युवाओं के पास 3 चीजें हैं, ऊर्जा है, उत्साह है, उष्मा भी है। और ऊर्जा, उत्साह और उष्मा तीनों का कम्युनिकेशन होने के बाद भी हैप्पीनेस करीबन 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 नहीं के बराबर है। न मालूम क्या दिक्कत है तुम्हें जिनमें समझ में नहीं आता है, मगर फिर भी दिक्कत दिक्कत दिक्कत। चावड़ा साहब का बहुत आग्रह था, गुरुदेव आइए एक बार। मैं मैट्रिक पास हूं, फिर भी एक ताकत वाली बात बताना चाहता हूं। बरसों पहले बम्बई में मैं रहने वाला था, गृहस्थ जीवन में जब साधु नहीं बना था, तब अंधेरी भवान्स कॉलेज में मेरा सेंटर था एग्जाम का, और सेंटर का एग्जाम था। तब मेरे साथ एक लड़का था, उसने बोला ये बोर्ड वाले अपनी बहुत मजाक कर रहे हैं। तब ने पूछेलू आमा तमारो नंबर नहीं? એટલે મેં કીધું મજાક શું કરે? મને કે આપણને એક્ઝામમાં આ લોકો ઓપ્શન આપે છે, એમાં મજા શું આવે? વોટ અબાઉટ, વોટ મીન્સ ઓપ્શન? બાય ઓપ્શન નોર્થ, હે વિકલ્પ, એટલે આમ દાખલા તરીકે, હા, એટલે મેં કીધું આમાં શું તકલીફ છે મને કે આપણે 12 મહિના બરાબર ભણીએ અને આપણને લોકો ઓપ્શન આપે એમ? આપણે ફી બરાબર ભરીએ, ભણ્યા બરાબર, બધી મહેનત બરાબર કરી, યાદ બરાબર રાખ્યું, અને પછી આપણને કે 16માંથી 8 ખાલી જગ્યા લખજો, એટલે આપણને બેવકૂફ માને છે આ લોકો। હમણાં 100% ઓપ્શન માંગે છે ઘણા। મેં કીધું કે યાર યુનિવર્સિટીની આ વ્યવસ્થા છે, એમાં આપણે શું કરીએ? મને કે આપણે કંઈ ન કરીએ, પણ હું તો આજે અપમાન કરી આવીશ, માર ખાઈશ। આ તારા બાપુજીની નથી યુનિવર્સિટી। મને કે જોઈને આપણે મળીએ,
एग्जाम पूरी जाने पर तने मळी बस स्टैंड पर। और मैं सच बताना चाहता हूँ, एग्जाम खत्म होने के बाद मैथ्स का पेपर था, एग्जाम होने के बाद दोनों बस स्टैंड पे आ गए। ત્યારે મેં એને પૂછ્યું શું કરું, મજાક કરી? મને કે મજાક કરીને એ લોકોનું અપમાન કરીને આવ્યો। મેં શું બોલ્યો તો કાંઈ નહીં, આપણે બાજુમાં જ બેઠા હતા। મને કે એમ નહીં, પેપરમાં એને લખ્યું હતું 16માંથી કોઈ પણ 8 લખો, અને મેં પેપરના જવાબમાં લખ્યું 16માંથી કોઈ પણ 8 તપાસો। એના બાપની તાકાત નથી એક માર કાપે મારો। साहब बोलो है तो मेरे पास ये गट्स? एग्जाम के आने वाले दिनों में एक टीचर ने मुझे हर मैंने इंपॉर्टेंट जो था सब बता दिया। હવે કોઈ છોકરાને પ્રશ્ન પૂછ્યો તો પૂછો, એટલે છોકરો કે સર પેપર કઈ પ્રેસમાં છપાય છે, સર કહી દો ને। What about achievements versus adjustment? आपको मालूम है मेरे जीवन में पूरी जिंदगी रिस्क फैक्टर को लेकर के हम निकले। कल भोजन कहाँ मिलेगा, कल कहाँ ठहरेंगे, कल मकान मिलेगा कि नहीं, नथिंग एल्स। और हम निकल पड़े, 56 साल से निकल पड़ा हूं, मगर कहीं दुख नहीं है। कभी कभी कितने दिन ऐसी व्यवस्था हुई जो हम चाहते थे उससे बिल्कुल विपरीत में गया, फिर भी एडजस्टमेंट हमारा पक्का था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, समझता हूं मैं, आपको यदि चाहते हो कि गुरुदेव में हैप्पी बना रहूं, आपके पास ये 3 विकल्प में जो पहले बता दिया, वैल्यू नंबर 1, मॉरल नंबर 2 एंड एडजस्टमेंट नंबर 3। आपने पानी देखा होगा, किसी भी बर्तन में पानी डालो, पानी इज रेडी टू बी एडजस्ट। चाहे तपेली में, चाहे ग्लास में, चाहे कटोरी में, चाहे थाली में, पत्थर कभी एडजस्ट नहीं होगा और पानी एडजस्ट हो जाएगा। पानी हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, वो बोलेगा मेरी चॉइस नहीं है, आप जहां भी डालो, आई एम रेडी टू बी एडजस्ट। आपकी मानसिकता को बता देना। अचीवमेंट बराबर है, मगर एडजस्टमेंट के क्षेत्र में यदि तुम ताकत वाले बने हो तो मैं निश्चित तौर से मानूंगा आपको हैप्पी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चौथे नंबर की बात, कंफर्ट वर्सेस कंट्रोल। ये तो सब कॉलेज में अभी जो स्कूल कॉलेज बन रही ना, कंफर्ट जोन जबरदस्त है। मैं तो कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, प्लीज यू गिव मी आंसर, वन ऑफ द स्टूडेंट मे बी पॉसिबल। ये कॉलेज छोड़ने के बाद जब तुम घर पे जाएंगे तब आपके जीवन में यदि कोई भी संघर्ष आ गया जो तुम नहीं चाहते थे, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है संसार में, वो संघर्ष के माहौल में यदि तुम टिक सको, ऐसा एजुकेशन तुम्हारे पास, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास क्या है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, कॉलेज समाप्त होने के बाद आप घर पे जाएंगे तब संघर्ष की कोई भी मानसिकता आपके जीवन में आ गई, तब आप जम के खड़े रहेंगे। ऐसी शिक्षा, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके पास क्या है, बोलो। हाँ, शायद बोलो माँ बाप नहीं है, फिर क्या काम लगेगा? पहली बार तो एक्सपीरियंस कर रहे हो, यही नहीं एक्सपीरियंस, पहली बार तो कर रहे हो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में जिंदगी में एग्जाम आएगी, कॉलेज की एग्जाम खत्म हो गई और जिंदगी में एग्जाम आई, वहां कैसे पास हो जाएंगे? ये कौन सुसाइड कर रहा है? इतने साक्षर लड़के सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आप देखो सुसाइड का रेशियो ये पढ़े लिखे लड़के में बहुत है। यदि वो टिक नहीं पाते तो सुसाइड, ये टिक जाते तो सुसाइड क्यों करते? फेल होगा सुसाइड, बिजनेस में लॉस होगा सुसाइड,
पत्नी माँ के चली गई सुसाइड, बस जीना ही नहीं। कई लड़के मुझे बताते थे, एक मैं बताना चाहता हूँ सर, बोले मेरी ये घड़ी लेके बैठा हूं, बराबर है, मैं यदि आपको मेरी ओर से घड़ी भेंट दूं तो आप जिंदगी भर इनको संभालेंगे प्यार से? शायद, हाँ। मैं इतना कहना चाहता हूं, मेरी घड़ी यदि आपको मैं दे देता हूं तो आप ये चाहेंगे गुरुदेव एक संत की घड़ी हमें मिल गई, हम इनको डैमेज कभी नहीं करेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको मिली हुई पूरी जिंदगी और प्रभु की गिफ्ट है, आप इनको डिस्टर्ब कैसे कर सकते? थोड़ी सी बात और सुसाइड, थोड़ी सी बात। आप देखो अभी बेंगलोर में 15 साल की लड़की चैटिंग करी थी एक लड़के के साथ, और इसके पिताजी ने देख लिया। एक बात आप मुझे दिल से बता देना, यदि तुम प्रामाणिकता से हो तो प्लीज एकदम गंभीरताથી આ વચન, આજના પ્રવચનનું સાંભળજો। તમારી આખી જિંદગીમાં તમારી ભૂલમાં તમારા મૂળને જોયા વિના તમને સંભળાવી શકે એવા એડ્રેસ તમારી જિંદગીમાં કેટલા? फिर से नो कमेंट प्लीज। તમારા મૂળને જોયા વિના તમારી જિંદગીમાં તમારા દ્વારા થતી ભૂલ એને રોકવા માટે, એને ટોકવા માટે एक एड्रेस તમારી કેટલા કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાહેબ મારો મૂળ જોયા વિના મને કહી શકે? નો વન। એક સમય હતો જ્યારે ભૂલ કરતા દીકરો ને દીકરી ડરતા હતા, આજે સમય જે ભૂલ કાઢતા બાપ અને માં ડરી રહ્યા છે। પબજી રમતા છોકરાને કહેવાનું નહીં, મોબાઈલ રમતા કહેવાનું નહીં, આ રમતા નહીં કહેવાનું નહીં, અને ભૂલે તો કીધું સુસાइड। 6 महीने के पहले भाईंदर का 13 साल का लड़का, ओनली एज ऑफ 13, हेयर कटिंग सैलून से आया वो घर पे, और बाल थोड़े ज्यादा काट दिए थे हेयर कटिंग सैलून में, और लड़का दर्पण में देख के दुखी था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ इतनी दादी माँ थी, उनको क्या हुआ, चिड़चिड़ापन क्यों है? ये मेरे बाल ज्यादा काट दिए उसने, होगा। शेर पकड़ दिया उसने मेरा, होगा। 5-7 दिन जाने दे, अच्छे हो जाएंगे, बाल तो बढ़ते ही है। मैं बोलना चाहता, तुम्हारा नंबर इसमें नहीं है ना? ये 13 साल का लड़का, उसने बोला मैं अगर मेरा बाल वो ज्यादा काटा ही क्यों? अरे भाई गलती हो गई होगी, मैं चल उनके साथ तुझे लेके जाती हूँ और उनको डांटती हूँ, नहीं काटा क्यों? अभी मां समझा बे, तो भी क्या समझे? और 13 साल के बेटे को कितना 7-10 दिन जाने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी माँ चौके में गई और 16वीं मंजिल से बेटे ने नीचे चम मार के सुसाइड कर दिया। 13 વર્ષનો છોકરો ખાલી વાળ વધારે કાપી નાખ્યા માટે મરી શકે છે, કોઈ તમને કહેનાર ન મળે। લખો તો લખી નાખજો, જે સાંભળી શકે એ જ પોતાને સંભાળી શકે। और वो 15 साल की लड़की जिसके पिताजी ने देख लिया, कहा बहन ये उम्र नहीं है चैटिंग की, छोड़ दे। और बेटी ने अपने पिताजी को मन में रख के बैठी, क्या जनरेशन है। और एक दिन बेटी की मम्मी और बेटी का भाई बाहर गए थे, पप्पा और अकेली वो बेटी। एकलौती बेटी, बड़ी प्यारी। और पिताजी को उसने कहा, पिताजी मम्मी नहीं, आज तक तो मैंने कभी आपको दूध नहीं पिलाया, आज मैं चाहती हूं आप मेरी ओर से दूध पियो। अपनी बेटी के हाथ से दूध मिलने के पिताजी खुश थे, और बेटी के हाथ से पिताजी ने दूध पिया। बेटी ने दूध में नींद की गोली डाल दी थी। पाछड़ आबाद नहीं,
और जैसे 5, 7, 10 मिनट हुई, सोफा सेट पे पिताजी ढल गए। जिस लड़के के साथ बेटी ने चैटिंग करती थी, बेटी ने फोन करके उनको बुला लिया। बेंगलोर का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जब इसकी क्लिप किसी ने मुझे दिखाई, मैं हैरान था। ये कर सकता है, ये बेटी 15 साल की बेटी, एक इतना ही बोला था इस उम्र में चैटिंग मत करना, इसमें यह कर सकती है। वो लड़का गया, ब्लॉक का दरवाजा बंद किया, बेटी ने अपने पापा को इस लड़के के साथ उठा करके बाथरूम में ले गई और केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया। ये व्यवस्था यदि आपके जीवन की है, मैंने किताब लिखी थी परीक्षा की जिंदगी और जिंदगी की परीक्षा। परीक्षा की जिंदगी में पास हो जाना बहुत आसान है, मगर जिस दिन जिंदगी की परीक्षा आएगी तब पास होना पानी उतर जाएगा। नंबर 3, अचीवमेंट वर्सेस एडजस्टमेंट। नंबर 4, कंफर्ट वर्सेस कंट्रोल। सच बोलो, सुविधा को ना बोलने की तुम्हारी तैयारी है? हर सुविधा आपको कमजोर बना रही है, हर सुविधा आपको कमजोर बना रही है। चैलेंज चैलेंज उठाने के लिए कंफर्ट वाला कभी तैयार नहीं होगा। चाहे आपके पिताजी, आपकी माताजी, चाहे तो आपकी पुरानी पीढ़ी, इनके पास इतनी सुविधा नहीं थी। आपने किसी भी घड़े को देखा होगा, कुंभार घड़े को तैयार करके सीधा बाजार में बेचता नहीं है, पहले आग में डालता है। और जब तक वो घड़ा आग में नहीं जाता है तब तक घड़ा मजबूत नहीं बनता है, कभी भी टूट सकता है। माने घड़ा बनना वो कंपल्सरी नहीं है, आग में जाना वो भी इतना ही कंपल्सरी, यदि घड़े को ठीक जाना है तो। मैं इतना पूछना चाहता हूं आपको, पूरी जिंदगी में असुविधा कितनी, और यदि असुविधा आ गई उनको एक्सेप्ट करने की आपके पास क्षमता कितनी। ये नंबर 4, कंफर्ट विदाउट कंट्रोल, ये नहीं चाहिए। एक चिड़िया थी, डाली पे बैठी थी, राजा को बड़ी प्यारी थी चिड़िया, और राजा चाहते थे चिड़िया मेरे बगीचा में कहीं भी घूमती रहे, मगर चिड़िया डाली पे बैठी तो बैठी, उड़े ही नहीं। आंख होने के बाद चिड़िया उड़ती क्यों नहीं है? बहुत लोगों को बुलाया, प्रयास भी किया, मगर चिड़िया चम के अपने पैर को जमा करके बैठ गई थी। तब लगा इनको उड़ाना तो पड़ेगा। एक लड़का जा रहा था जंगल में काम कर, उसको बुलाया, उसने बोला 2 मिनट का काम है, ये चिड़िया को उड़ाना 2 मिनट का काम है। ढोल बजाए फिर भी चिड़िया नहीं उड़ी, उसने बोला 2 मिनट का काम कैसे? अब बोलो मैं उड़ा दूं। और 1 ही मिनट में जिस डाल पे चिड़िया बैठी, डाल काट दी, जैसे डाल काटी चिड़िया उड़ी। डाल कंफर्ट जोन से उड़वा नहीं देती, सुविधा એટલો બધો કમ્ફર્ટ ઝોન છે, તમને ક્યાંય ઉડવા જ નહીં દે। આ બધી જ વ્યવસ્થા હોય તો જ હું આગળ ચાલુ, આ વ્યવસ્થાને हम निकल पड़े। जब हम गुलाब तोड़ने गए, लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। अमृता प्रीतम का ये कोटेशन, जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। गुलाब की यात्रा पे निकलने का मन तो हुआ, मगर लोगों ने दिखा दिया कि गुलाब तो है मगर कांटे चुभ जाएंगे, पीड़ा होगी। और कांटे के डर से कितने लोगों ने गुलाब की यात्रा पेंडिंग कर दी। मैं भी वही कैटेगरी में था, मगर मैंने कहा कि नहीं जाना है।
जब हम गुलाब तोड़ने गए तो लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुप जाएंगे। मगर जब गुलाब तक पहुंच ही गए, हर कांटे फूल बन गए। ये कंफर्ट जोन में से बाहर निकले। અમે બધા સાધુ થયા અને કમ્ફર્ટ ઝોન છોડ્યો અને એક તાકાત એવી બની ગઈ। मुझे मालूम नहीं, फिर भी एक प्रश्न पूछूं आपको, તમે બધા અમને મજામાં માનો? તમારી માટે વાત નહીં, મારા માટે પૂછ્યું। તમારા કરતા હું વધારે મજામાં છું એવું માનો? શું કારણ શું? નહીં, તમારી આગળ ખાલી જવાબ 2 મિનિટમાં આગળ ચાલુ। તમારા કરતા હું વધારે મજામાં છું એવું માનો? શું કારણ? મારી મજા જોઈએ તમારે? ये चौथे नंबर की बात, कंफर्ट जोन आपको रीच बना सकता है, कंट्रोल आपको हैप्पी रख सकता है। और 5वें नंबर की बात, इंटेलिजेंट वर्सेस इनोसेंस। चाहे તમે કેટલા પણ બુદ્ધિશાળી બનો, સાથે તમારી નિર્દોષતા ટકી રહે। आज एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि एजुकेशन शिक्षित तो बना देता है, मगर दीक्षित कहाँ बनता है, वह लाख रुपए का प्रश्न है। शिक्षित तो बना देता है, आपको डिग्री भी दे देता है, मेमोरी पावर आपका जबरदस्त है, इसलिए तुम आगे भी निकल सकते हो, मगर इनोसेंस, एक आपका कॉन्शियस जो निर्दोषता को लेकर के बैठा है, ये जैसे जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आज के प्रवचन को मैं विराम दे देता हूं। टाइम हो चुका है। मैं वर्षों पहले हरीश भाई पालिताना में था, साक्षरता अभियान चल रहा था। हर निरक्षर लोग नीचे बैठे थे, एक उनको गाइड करने वाला ऊपर बैठा था, और निरक्षर लोग को ये बोलते थे कि तुम्हें साक्षर बनना चाहिए। एक निरक्षर आदमी ने पूछा, वाई वी वुड लाइक टू, हम साक्षर क्यों बने? देखो, तुम कुछ गवर्नमेंट के काम करते हो ना, तब होता क्या है, 100 रुपया देना आपको होता है, 80 रुपया देता है, और 100 रुपये के कागज पे आपका अंगूठा लेता है। अंगूठा ख्याल से ना, अंगूठा छाप। उसने बोला तो इसमें दिक्कत क्या? नहीं, वो 80 देता है और 100 पर तुम्हारा साइन ले लेता है। यदि तुम पढ़े लिखे होते तो पढ़ लेते कि 100 दिया और हाथ में 10 आया, तुम इनको पूछते 20 कम क्यों दिया? लॉजिक तो बराबर है। તમે શું કહો છો? ભણ્યો તો આ બરાબર છે લॉजिक? હા બાળક ના પડો, 80 રૂપિયા આપીને 100 રૂપિયાના કાગળ ઉપર સહી લે, તમે ભણ્યા હોત, વાંચતા આવડતું હોત, તમે કહે યાર 80 આપ્યા, 100 પર સહી નહીં લીધી। બોલો ગામડીઓ તો ને સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો, એને પૂછ્યું જો તું ભણ્યો હોત ને તો તું એને કહે કે આ 100 રૂપિયા તમે આપવાનું લોકો છે ને, આપો 80, પેલા 20 આપો। એને સરસ વાત કરી। સર તમારી વાત સાચી, મારે તમને પૂછવું છે કે 100 રૂપિયાના કાગળ ઉપર 80 રૂપિયા આપીને સહી લે, એ ભણેલો છે કે અભણ છે? સાચું બોલો, છેતરનારો કોણ છે, ભણેલો કે અભણ? હે? ભણેલો। તો લોકો કે સર અમને નિરક્ષર જવા દો, આવા ભણાવીને શું કામ છે? સાક્ષરા विपरीताश्च राक्षसा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी प्रीमाइसिस में आया, आपने मुझे बात बताई, बहुत अच्छा प्रयास आपका, शिक्षा में हर कुछ अच्छी चीज डालने का आपका इतना अच्छा प्रयास। मगर मैं चाहूंगा
हर लड़के के दिमाग में पहले आप ये बिठा दो कि वी वुड लाइक टू हैव टू बी हैप्पी। हैप्पी बनने के बाद आपके पास विक्ट्री आ जाए, आप इंटेलिजेंट बन जाओ, आपके पास अचीवमेंट आ जाए, कोई चीज का विरोध नहीं, मगर इंजन हैप्पीनेस और बाकी सब डिब्बे होने चाहिए। जिस दिन ये व्यवस्था कितनी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में प्रवचन करके आया हूं, हर जगह ये बड़ा लॉस भी मैंने देखा है। मैं चाहता हूं आपका, अगर पूरी व्यवस्था ने मुझे बुलाया, सबसे बड़ा आनंद तो वो है, बोलावा वाला तो बोलावे છે પણ બેસનારા બેહતા નથી। તમે બધા બેઠા, મને સાંભળ્યો, કેટલું ઉતર્યું, કેટલું ન ઉતર્યું, કેટલું ગમ્યું, કેટલું ન ગમ્યું એ મને ખબર નથી, અને મારે કંઈ ઓપિનિયનની ઈચ્છા પણ નથી, પણ ઘણીવાર એમ લાગે છે આજે આપેલી સારી સલાહ કામની ન હોય તો રાખી મૂકજો, ક્યારેક કામ લાગશે। આજે આપેલી સારી સલાહ આજે બિલકુલ કામની ન હોય તો પણ રાખી મૂકજો, ક્યારેક કોઈ કટોકટીની પળમાં યાદ આવશે ત્યારે લાગશે કે સંત કહી ગયા હતા, વાત સાચી હતી। इजराइल के एम्बेसडर, गत साल मैं अहमदाबाद आमली में चातुर्मास था, बस इस एग्जाम के बाद दूसरे सेशन के लिए आएंगे। और एम्बेसडर दो थे, उसने मुझे पूछा, महाराज साहब व्हाट इज द रूट ऑफ जैनिज्म। अभी खड़े नहीं हुए 2 ही मिनट, और मैंने बता दिया हैप्पीनेस इज द रूट ऑफ जैनिज्म। और तब हम लोगों का यह प्रश्न था, व्हाट इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस। तब एक जवाब जो दिया था, व्हाट इज द रूट ऑफ जैनिज्म, इनका एक मिरेकल जवाब दिया था। वो मिरेकल जवाब मैं दूसरे सेशन में दूंगा। संजय भाई।